to you. In previous classes, we discussed about introduction of electromotive induction, electromagnetic induction, and we came to know that there are some important topics which we have discussed earlier. We discussed about magnetic flux, we discussed about the intensity of magnetic field, we discussed about Faraday laws of electromagnetic induction. Dear students, I hope that if you are new right now, I would like to recommend you guys to go through that very series of lectures. I have explained there about electromagnetic induction as well. So dear students, today topic is about Lenz's law. Today's topic is about Lenz's law. Dear students, who was this Lenz? Lenz was a scientist who defined the direction of induced current and induced EMF, electromotive force. So dear students, in previous classes we came to know that it was really a great invention by Faraday, that he did some experiments and observations, and with the help of those experiments and observations we came to know that yes, there is a possibility we can create current, we can create induced current from magnetic field. Earlier Oersted did experiment and he mentioned in his own experiment that where there is current, there is magnetic field. And if we are going to change the direction of magnetic field, if we are going to change the direction of electric current, the direction of the magnetic field will also change. And then after a long time, Faraday did experiment and observations on it, and he told us that yes, it is possible that we can create induced current from a magnetic field. Obviously, it was a great invention. We are seeing nowadays this electricity, and this is just because of that very experiment. We are seeing in common life, example is motorcycle, cars, buses, the phenomena is occurring there, and we are able to create electric current, we are able to convert the mechanical energy into electrical energy with the help of magnetic field. So dear students, Lenz's law is today's topic. तो Lenz's law, जैसे मैंने पहले कहा है कि Lenz's law वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायरेक्शन डिफाइन की, इन्होंने करा था डिफाइन डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की और ईएमएफ की. तो कैसे इन्होंने इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे डिफाइन की? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. ये स्टूडेंट्स, मान के चलिए हमारे पास एक एक कॉइल हमारे पास है और हम एक मैग्नेट लेकर आएंगे. मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नियर द पोल्स इज हाई, इज मोर एज कंपेयर टू जितना हम अवे चले जाएंगे मैग्नेट से, उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है. ऑलरेडी हम जान चुके हैं, इन चीजों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बट लेंज लॉ ने क्या किया? लेंज लॉ ने एक कॉइल लेकर आए और एक मैग्नेट लेकर आया, और अभी जो है ये मैग्नेट, इन्होंने इसकी जो वेलोसिटी है, ये मैग्नेट जो है ये नियर लाना चाहते थे, इस कॉइल के नियर मोशन में लाना चाहते थे इस मैग्नेट को. तो नियर द कॉइल लेकर आए, तो ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेट जो है, इट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस. तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन इज कि हम जानते हैं कि जो इंडक्शन का फेनोमेना हम जानते हैं, तो इंडक्शन के थ्रू अगर ये मैग्नेट हम पास लेकर आएंगे इस कॉइल के पास, तो क्या होगा इस कॉइल में? द आंसर इज करेक्ट कि इस कॉइल के अंदर जो है इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगी. तो आप जानते हैं अगर इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगी तो इसका ये मतलब है कि अगर इस कॉइल के अंदर अभी करंट है तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड will always oppose this magnetic flux, right? ये हम जानते हैं. तो अभी जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसके अंदर है, तो ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी. We came to know that when there is a change in magnetic flux linked with the coil, then the induced current is created. तो ये इसे अपोज करेगा, ये ऐसा होने नहीं देगा. तो इसके लिए ये क्या करेगा, इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगी. तो आप ये मुझे बताइए कि अगर इस मैग्नेट को हम
इसके पास लेकर आएंगे। तो लेंस ने क्या किया, इस मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर आए, तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहां इसके अंदर जो अब मैग्नेटिक फील्ड है ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। तो कैसे अपोज करेगा, इस मैग्नेटिक इस कॉइल के अंदर कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होगा? द आंसर इज सर नॉर्थ पोल। क्यों नॉर्थ पोल होगा? नॉर्थ पोल इसलिए होगा क्योंकि ये इसे आप अपोज करेगा, ये इसे अपनी ओर आने नहीं देगा। ये क्या करेगा, इसके अंदर जो अपोज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को। सपोज जो चीज इसके पास आ जाएगी ज्यादा पास, ये इसे दूर भगाने की कोशिश करेगा। और अगर कोई चीज दूर जा रहा है ये इसे अपने पास लाने की कोशिश करेगा। अभी ये पास आ रहा है तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल के अंदर, ये क्या करेगा, ये इस मैग्नेट को दूर भगाएगा। इजंट इट? दूर भगाने के लिए ये कौन सा मैग्नेट यहां क्रिएट करेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल? सर नॉर्थ पोल। क्यों? क्योंकि रिपल होगा तभी ये दूर भागेगा, तो इसके अंदर नॉर्थ पोल होगा। तो जो मैग्नेट जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस कॉइल के अंदर होगी दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? कब? जब हमने मैग्नेट कॉइल के पास लेकर आए तो इसके अंदर नॉर्थ पोल होगा। जो नॉर्थ पोल क्या करेगा, इस मैग्नेट को दूर भगाएगा और इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगी और उस करंट की जो डायरेक्शन है दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। और मान के चलिए अभी हमारे पास और एक मैग्नेटिक फील्ड है, और एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है। तो अब मुझे ये बताइए डियर स्टूडेंट्स कि ये जो है अभी हम इसको दूर भगाने की कोशिश करेंगे इस मैग्नेट को। किससे? इस कॉइल से दूर भगाने की कोशिश करेंगे। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो ये जब दूर भगाने की कोशिश करेंगे तो ये कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, इसको मैग्नेट दूर भागने की कोशिश करेगा। यहां पास आने की कोशिश कर रहा है, ये इसे दूर ले जा रहा है। किससे? नॉर्थ पोल क्रिएट करने के बाद, क्योंकि यहां रिपल्शन होगा, राइट। अब ये दूर भाग रहा है यहां से, ये आप देख सकते हैं मैग्नेट हम दूर ले रहे हैं इससे। तो यहां पे जो है कौन सा पोल क्रिएट होगा? द आंसर इज सर साउथ पोल। क्यों? क्योंकि अपोजिट पोल्स व्हाट अट्रैक्ट ईच अदर। ये इसे दूर भगाने की कोशिश नहीं करेगा, अपने पास लाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैग्नेट दूर भाग रहा है। तो इसके अंदर जो है जो पोल होगा वो साउथ पोल क्रिएट करेगा। यहां मैग्नेटिक फील्ड जो इस कॉइल के अंदर क्रिएट होगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी डियर स्टूडेंट्स दैट विल बी क्लॉकवाइज। तो ये चीज जो है ये देखा था किसने? लेंस ने अपने एक्सपेरिमेंट में। तो सेम चीज अगर करेंगे हम डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहां पे साउथ पोल अपोजिट करेंगे, हम साउथ पोल लेकर आएंगे यहां पे। ये साउथ पोल है इसका मैग्नेट का, ये नॉर्थ पोल है, और एक मैग्नेट लेकर आएंगे, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। तो अब यहां पे मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स, अगर इन ऑब्जर्वेशन से आपको पता चला कि जी सर कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होता है ये ऑलवेज अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। अगर ये मैग्नेट दूर भागेगा तो ये पास लाने की कोशिश करेगा साउथ पोल क्रिएट करके। अगर यहां पे पास आ रहा है ये मैग्नेट तो ये नॉर्थ पोल क्रिएट करके इस मैग्नेट को दूर भगाएगा, राइट। तो यहां पे जो है अभी ये मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे कौन सा ये जो है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहाँ पे ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन, आप जानते हैं इंडक्शन के बारे में, जो ही हम पास लेकर आएंगे तो यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? द आंसर इज व्हाट? साउथ पोल। बिल्कुल सही। क्यों साउथ पोल? क्योंकि अभी जो है अभी जो मैग्नेट की डायरेक्शन है वो किसकी ओर है? वो कॉइल की ओर है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज अपोज इट। तो ये इसे क्या करेगा? साउथ पोल यहाँ क्रिएट करेगा, तो ये रिपल होगा, ये इसे दूर भगाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होगी करंट की, इंड्यूस्ड करंट की? दैट विल बी क्लॉकवाइज। ओके, अब यहाँ पे जो है अब हम इसको दूर भगाएंगे, इस कॉइल से दूर भगाएंगे इस मैग्नेट को। तो ये मुझे बताइए इस कॉइल के अंदर जो करंट क्रिएट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अब अभी मैग्नेट दूर जा रहा है तो पास आने के लिए कौन सा पोल यहां क्रिएट करेगा? द आंसर इज नॉर्थ पोल। बिल्कुल सही। और जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो होगी इस कॉइल के अंदर दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज देखा था
लेंस ले, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ। ईएमएफ जब इंड्यूस्ड होगा तो विच मीन्स दैट ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग करंट। जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसके बाद करंट कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होगी, क्रिएट होगी। जब कॉइल के अंदर करंट क्रिएट होगी तो वो कॉइल अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज करेगा अपोज किससे? मैग्नेटिक फ्लक्स को, विच इज लिंक्ड टू इट। ओके, तो बाय डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं इसको? हम डेफिनेशन लिखेंगे इस लेंस लॉ की। Okay, dear students, so the definition of the Lenz law is like the direction of induced current. पहले मैंने बताया डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है इंड्यूस्ड करंट की। is such as required to oppose, ये वाली लाइन आप ध्यान दीजिए, to oppose the change in magnetic flux। ये अपोज करेगा किसमें? जो चेंज होगी मैग्नेटिक फ्लक्स के, मैग्नेटिक फ्लक्स में इस कॉइल के अंदर, लिंक टू इट। तो ये चीज बताया था लेंस लॉ ने। आई होप कि स्टूडेंट्स यू हैव गॉट इट, कि आप जानते हैं कि जितना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उतनी ज्यादा करंट क्रिएट होगी, इजंट इट? उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ करंट की होगी। और ये यहाँ पे किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो चीजें मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि ये जो है ये किन चीजों पे निर्भर करता है। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने फेराडेज में पढ़ा था कि जो ही जितना हम पास लेकर आएंगे फिर दूर भगाएंगे, और जिस स्पीड के साथ, जितनी स्पीड हम एक्सेलरेट करेंगे यहाँ पे, जितनी स्पीड ज्यादा होगी मैग्नेट के अंदर बाहर करने की, उतनी ज्यादा जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उतना ज्यादा इंड्यूस होगा। और जब ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा तो दैट मीन्स कि करंट उतनी ज्यादा क्रिएट होगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट यू हैव गॉट दिस लेंस लॉ। इट्स अ वेरी सिंपल लॉ। थैंक यू वेरी मच। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप कि जो लेंस लॉ है वो आपको समझ आ चुका होगा। जो कि लेंस लॉ के अंदर हमने बात की थी कि जो कि लेंस थे वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफाइन करा था डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो वहां पे हमें पता चला कि कब क्लॉकवाइज होती है डायरेक्शन एक कॉइल के अंदर, और एंटी क्लॉकवाइज कब होती है। मैग्नेट को घुमाने से, दूर भागने से कब क्या होता है, और मैग्नेट को पास लाने में, नियर द कॉइल लाने में क्या होता है। ये लेंस लॉ में हमने पढ़ा था। तो अब जो हम बात करेंगे फैराडे सेकंड लॉ के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछली क्लासेस में ये क्लियर कर चुका हूं, डेफिनेशन लिख चुके हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं, फर्स्ट लॉ भी और सेकंड लॉ भी। इसमें से मैंने बताया था जो लॉज है वो एक क्वांटिटेटिव लॉ है और दूसरा क्वालिटी लॉ है। ओके, अब हम सेकंड लॉ पे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। जो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे थे, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे में इन्होंने क्या किसकी चीज के बारे में बात की थी? इन्होंने बात की थी द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाउ मच, यानी रेट के बारे में वहां बात की थी कि कब जो ईएमएफ है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो कब ज्यादा होगा और कब कम होगा, और उस पे करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगी, और उसके पीछे वो किस पे डिपेंड करता है। ये चीजें हम थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेंगे इस लॉ के अंदर। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर में आप प्लीज जाइए, वहां पे आप वॉच कीजिए। ईएमआई के जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमने पढ़ा था फैराडे लॉज। तो यहाँ पे हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो क्या किया था फैराडे ने? फैराडे इन्होंने एक कॉइल लेकर आए थे, इनके दो एंड्स, और इस कॉइल में इन्होंने फिक्स्ड किया था एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। What do you mean by sensitive galvanometer? Sensitive galvanometer means if a weak current is flowing in any circuit, in any coil, it will show a deflection. It will indicate that very current. That is called as sensitive galvanometer. तो अगर थोड़ी बहुत सी हल्की सी भी 0.3 एम्पियर या 0.4 एम्पियर भी एक कॉइल के अंदर पास होगी, इट विल शो द डिफ्लेक्शन। दैट इज इट, कि इसको हम कहते हैं कि ये सेंसिटिव गैल्वानोमीटर इसमें फिक्स किया था एक सर्किट के अंदर, एक कंप्लीट सर्किट है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए या इंड्यूस्ड करंट को क्रिएट करने के लिए एक सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है। अगर कहीं पर भी एक सर्किट के अंदर थोड़ा बहुत सा कट है तो ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। दैट विल नॉट शो इफ ए सर्किट इज इनकम्प्लीट। ओके, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए।
अच्छा, क्या यहाँ पे अभी कोई सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का? सर नहीं। कहाँ होगा? एक कॉइल है, एक गैल्वेनोमीटर है, दैट्स इट. Galvanometer is a device which will show that the direction, it will show the deflection if any current is flowing in this very coil. इस कॉइल के अंदर कोई करंट है? सब नहीं. क्या ईएमएफ है? ईएमएफ पहले से ही होता है सर्किट के अंदर या किसी भी सेल के अंदर, ये याद रखना. सर्किट कंप्लीट होगा तो जो ईएमएफ है, जो जितना ज्यादा होगा वो करंट जो है उस पर डिपेंड करती है, उतना ज्यादा करंट फ्लो होगी. अच्छा, अब फैराडे ने सेकेंड लॉ में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो चेंज होता जा रहा है इस कॉइल के अंदर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज लिंक्ड टू दिस कॉइल. अब मान के चलिए अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो चेंज होने से क्या होगा? एक जो करंट है वो इस सर्किट के अंदर फ्लो होगी. जब इस सर्किट के अंदर फ्लो होगी तो दिस सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन. ओके, दैट इज फाइन. तो यहां पे अभी क्या है सर? यहां पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्योंकि जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग करंट और फ्लोइंग करंट. ओके, तो अब ये चीज है कि इसमें जो हमने सेकेंड लॉ में एक फॉर्मूला पढ़ी थी, अब इस गैल्वेनोमीटर को हमने हटाना है. ठीक, ये सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर मैंने इसलिए कहा था क्योंकि पहले जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए थे, इसी से उन्हें पता चला कि क्या करंट इंड्यूस हुई है या नहीं. अच्छा, यहां पे जो है अभी मान के चलिए कोई ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो इंड्यूस हो रहा है इस कॉइल के अंदर. कैसे इंड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से. ठीक, इस कॉइल के अंदर अब जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जितना जब ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दिस ईएमएफ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक करंट. तो इसकी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फ्लक्स में यहां चेंज हो रही है, इसकी फॉर्मूला हमने देखा था सेकेंड लॉ में, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई, दिस फाई इज हियर फ्लक्स अपॉन डी टी. ये जानना जरूरी है, इस फॉर्मूला से हमें क्या चीजें पता चल रही है डियर स्टूडेंट्स. यहां देखिए, E जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, किसके बराबर है? माइनस डी फाई. ये फाई जो है वो टी टाइम है, और ये जो फाई है ये फ्लक्स है. ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी भी कॉइल के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर, वो किस रेट में हो रहा है ये जरूरी है. ठीक है, इफ द फ्लक्स इज चेंजिंग very slowly, we can say, in other words, to make you better understand, that means the less EMF will be produced. If the less EMF will be produced, that indicates the less current will flow in any circuit. Okay. अब यहां पे ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या दिखा रहा है? ये नेगेटिव साइन यहां पे मैं लिखूंगा, दिस नेगेटिव साइन shows, this negative sign shows the EMF is opposite to change in flux. The EMF is opposed change in flux. जो फ्लक्स में चेंज आएगी उसको अपोज करने के लिए, जो ईएमएफ उसे अपोज करता है उसके लिए हमने ये नेगेटिव साइन ले ली है, और कुछ भी नहीं है. इस नेगेटिव साइन में आप कंफ्यूज मत होइएगा. पहले आप जानते हैं कि जो भी जितने सारे फील्ड है हमारे यूनिवर्स में, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे, ऑल द फील्ड्स आर वेक्टर क्वांटिटीज बिकॉज दीज फील्ड्स हैव डायरेक्शन. बट द मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि मैंने पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये स्केलर क्वांटिटी है. ये बात ध्यान रखिएगा. अब ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर, इट जस्ट शोज कि ये जो नेगेटिव साइन है कि ईएमएफ जो है ये अपोज करता है फ्लक्स को. ठीक है, मतलब फ्लक्स ज्यादा होगा ये इसे ज्यादा होने नहीं देगा. कौन? ईएमएफ. फ्लक्स कम होगा तो ये इसे कम और कम नहीं होने देगा. कौन? ईएमएफ. ये इसे अपोज करेगा. अगर ईएमएफ कम होगा ये बताएगा भाई नहीं ज्यादा होना है. अगर ज्यादा हो रहा है ये बताएगा नहीं कम होना है. मतलब कि भाई दायरे के अंदर रहिए. आप समझ रहे हैं मेरी बात? दैट इज व्हाई इट ऑलवेज अपोज टू दिस चेंज इन फ्लक्स. ओके, अब मान के चलिए कि ये जो अब ये जो डी फाई है पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है, ये किसके बराबर होता है? E इक्वल टू माइनस डी फाई किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एरिया
मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया अपॉन dt। ओके, ये जो डी फाई है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ये हमने पढ़ा था किसके बराबर है पिछले फैराडे के मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, कि ये बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। अगर स्ट्रेंथ होगी किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो दिस विल चेंज, और अगर एरिया ज्यादा या कम होगा, एक एरिया पे मतलब कितनी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फ्लक्स की। मान के चलिए ये मेरे हाथ में एक एरिया है 10 मीटर स्क्वायर है, एज्यूम करके चलिए यहाँ 3 मीटर स्क्वायर है, तो मान के चलिए यहाँ 5 5 5 5 जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब 25 मैग्नेटिक फ्लक्स है इसी एरिया के अंदर। अब मैं सेम यही एरिया ले लेता हूं, मैं करता हूं काम, मैं 10 फ्लक्स ले लेता हूं, 10 10 10 10, अभी कितना हो रहा है 40। एक ही एरिया है, द एरिया इज सेम बट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मोर, सो इट विल डिपेंड ऑन इट। अच्छा, dt मीन्स कितने टाइम में। अब अगर हमारे पास ये एक टर्न के लिए है, अब अगर हमारे पास एक टर्न के लिए n टर्न के लिए कितना होगा, इफ n टर्न्स, ये 1 टर्न के लिए है, इफ n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, तो फॉर्मूला क्या होगी, जस्ट n लगाना है, E इक्वल टू n डी फाई अपॉन dt, कि n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए है डियर स्टूडेंट्स। आउट ऑफ ए एंड बी विच, अच्छा ये हम डिस्कस करेंगे अभी कि इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन की जो कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो किस एंड पे होती है, ए या बी एंड के, ठीक है, यानी नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है एक सर्किट के अंदर। अच्छा, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि ये टाइम पे डिपेंड करता है, और किस पे, डी फाई पे, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर मान के चलिए कि जो चेंज हो रही है, जो मोशन है मैग्नेट की, वो मान के चलिए 1 सेकेंड में 20 है, 20 बार कर रहा है ऐसा ऐसा, ठीक है, ओके, तो ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा उस हिसाब से, ठीक है, और जब ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब द करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस वेरी कॉइल, दैट विल बी मोर, ओके। अगर हम मान के चलिए 10 है, 1 सेकंड में 10 बार, तो उसका मतलब इस 20 से कम यहां फ्लो होगा, तो टाइम जरूरी है यहां पे। अब कम समय में ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और ज्यादा करंट फ्लो होगी, ओके। So we are going to discuss now about which one is negative terminal, or in other words we can say that out of A and B which will have the collection of electrons, जो collection of electrons होती है वो कहां से स्टार्ट होगी, क्या नेगेटिव टर्मिनल कहां पे है, क्या नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज फ्लो होती है या पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि सर नहीं पॉजिटिव टू नेगेटिव है डायरेक्शन, कुछ कहते हैं सर नहीं नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये हाफ बेटर ट्रूथ है, दिस इज हाफ ट्रूथ, दिस इज नॉट फुल ट्रूथ। तो कंसेप्ट क्या है अभी आप देख लीजिए, आप ही बताइए मुझे। अगर हमारे पास एक कॉइल है, एक सर्किट है, इसका एक एंड जो है, मान के चलिए हम इस एक एंड का बी नाम रखेंगे और दूसरे एंड को ए एंड को, एक एंड को हम ए नाम रखेंगे, सॉरी बी एंड को हम, सॉरी दूसरे एंड को हम बी नाम रखेंगे। अब हम एक मैग्नेट लेकर आएंगे और ये मैग्नेट जो है इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड। ईएमएफ कहां पे प्रोड्यूस्ड होगा ये याद रखना, ईएमएफ इस सर्किट के अंदर, इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस्ड होगा, ये जरूरी है, कुछ बाहर नहीं होगा, याद रखना, इस सर्किट से बाहर नहीं होगा। अच्छा, देन जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो ईएमएफ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग करंट, तो इस कॉइल के अंदर क्या फ्लो होगी सर, करंट, बिल्कुल सही। अच्छा, अब आपके हिसाब से जब यहां पे करंट क्रिएट होगी तो ये कौन सा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? आप कहेंगे सर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, राइट, यही कहेंगे आप। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी,
सॉरी, आप कहेंगे सर यहां से इलेक्ट्रॉन जो है, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां होगी, तो आपके हिसाब से सर यहां पॉजिटिव होगा और यहां नेगेटिव होगा, राइट? क्योंकि जो कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगी अकॉर्डिंग टू यू, और आप ही के हिसाब से मैं मान के चलूंगा यहाँ पे चार्ज जा रही है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में चार्ज जा रही है, इस डायरेक्शन में चार्ज जा रही है यहां तक। अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस में जोड़ दूंगा इसके साथ, तो यहाँ पे मुझे बताइए अब यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ इस रेजिस्टेंस के अंदर यहां से क्या आ रही है सर, नेगेटिव, है ना? सॉरी, मेरे कहने का मतलब आपका ये नेगेटिव होगा और आपका ये पॉजिटिव होगा आपके हिसाब से। तो यहां पे जब हम पहुंचेंगे तो यहां क्या होगा, यहां से इस सर्किट के अंदर, इस रेजिस्टेंस के अंदर यहां से नेगेटिव स्टार्ट होगा, राइट? तो यहां तो पॉजिटिव हो रहा है, तो अब क्या है, तो सिंपल है, यहां जो है यहां पॉजिटिव होगा और यहां नेगेटिव होगी, ठीक है? नहीं समझ में आया पूरा? ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, एक सर्किट में क्रिएट करता हूं, एक कंडक्टर बना लेता हूं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू यू जो आप दिशा दिखा रहे हैं, यानी डायरेक्शन दिखा रहे हैं करंट की, यू आर शोइंग लाइक दिस सर, क्लॉकवाइज, ठीक है? तो आपके हिसाब से ये नेगेटिव होगा, ठीक, और ये पॉजिटिव होगा, राइट? लेकिन मुझे ये बताइए, जब इसके अंदर मान के चलिए सेल है, इस सेल के अंदर दैट इज सोर्स ऑफ करंट, इस सेल के अंदर यहां से करंट आ रही है, तो अब इस सेल के अंदर कहां से कहां जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव? ऐसा है नहीं, कहां से चलता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या सर हम गलत कर रहे हैं फिर? बिल्कुल, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि इट इज हाफ ट्रुथ। तो फुल ट्रुथ क्या है, अब यहां देख लीजिए, मान के चलिए कि अब यहां पे मैं जो है सर्किट नहीं जोड़ रहा हूं, यहां पे मैं कोई बल्ब नहीं, अब मैं इसको बाहर ले रहा हूं, मैं यहां पे बल्ब जोड़ रहा हूं। अब मुझे बताइए इस वाले पोर्शन की, फॉरगेट अबाउट द आउटसाइड, इस वाले यानी सोर्स के अंदर डायरेक्शन कहां है सर, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? जो कि गलत है। तो यहां क्या होना चाहिए, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां क्रिएट होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से होगा, ठीक है? ये नेगेटिव से जा रही है पॉजिटिव, ये सोर्स के अंदर है। अब सोर्स के बाहर क्या है, ये देखिए, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, तो यहां सोर्स के बाहर जो है वो जा रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इज दैट क्लियर? तो आंसर क्या है, यहां देखिए, इस सोर्स के बाहर, इस सोर्स के बाहर कहां जा रही है करंट, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और सोर्स के अंदर यानी सेल के अंदर कहां जा रही है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो व्हाट इज द फुल ट्रूथ? द फुल ट्रूथ इज दैट, ये निर्भर करता है क्वेश्चन पे। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि डियर स्टूडेंट्स, जो करंट की डायरेक्शन है वो किस दिशा में जा रही है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आप मुझे कहेंगे सर आप पहले ये बताइए, क्या सोर्स के अंदर या सोर्स के बाहर, राइट? अगर मैं कहूंगा सोर्स के अंदर, तो आप उत्तर दे दीजिए, आप आंसर दे दीजिए कि सर दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर मैं कहूंगा कि सोर्स के बाहर, मुझे कहिए, ये सोर्स था क्योंकि ईएमएफ यहां प्रोड्यूस होगा, रिमेंबर इट, ईएमएफ इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। ये मत कहिएगा कि नहीं यहां पॉजिटिव होगा, नहीं, ईएमएफ इसी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होगा। ओके, तो सोर्स क्या है, यही वाला पोर्शन। तो सोर्स के अंदर जो डायरेक्शन होती है करंट की दिशा जो होती है, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और सोर्स के बाहर, अब ये वाला देख लीजिए, सोर्स के बाहर कहां होती है, ये देखिए, यहां से करंट जा रही है यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहां देख लीजिए, सोर्स यहां पे सेल है, सोर्स के बाहर कहां जा रही है करंट की दिशा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और सोर्स के अंदर कहां जा रही है, सेल के अंदर कहां है, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। होप स्टूडेंट्स यू हैव गॉट इट कि डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है। कुछ लोग कहते हैं सर द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है, राइट? अब ये मैंने क्या कहा, ये हाफ ट्रूथ है, आप सही कह रहे हैं लेकिन हाफ कह रहे हैं।
क्यों आप कह रहे हैं? क्योंकि ये दिशा जो आप बता रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज फ्रॉम आउटसाइड सर्किट, राइट? आउटसाइड दिस बॉडी, इस बॉडी के बाहर, सोर्स के बाहर। लेकिन सोर्स के अंदर कौन सी दिशा है, कौन सी डायरेक्शन है करंट की? दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच, आई होप दैट यू गॉट इट।